development of the industries, for the development of the rural industries. Out of these three schemes, the first scheme which I am going to share with you is PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program, and another one is scheme for regeneration of fund for traditional industries, Sfurti. The third one which I am going to cover is Pradhan Mantri Mudra Yojana. These three specific schemes which especially focus towards the development of entrepreneurship as well as industrial setup. So the first scheme, which is Prime Minister's Employment Generation Program, when I was discussing this topic, MSME Act 2006, I mentioned PMEGP and Sfurti program in that class, in that lecture. So basically this Prime Minister Employment Generation Program, the lecture is going to cover what is scheme, how we can apply for this scheme, or if we want to suggest anybody that if you want to get some fund from government for the entrepreneurship development, you can apply under this scheme. So this Prime Minister Employment Generation Program, PMEGP scheme, is actually credit linked subsidy program, and this program is under the Khadi Village and Industry Commission at the national level. So the main nodal agency is KVIC for implementation of Prime Minister Employment Generation Program. And Prime Minister Employment Generation Program, I told you that this KVIC, under KVIC itself under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So MSME Ministry absorb program under the wing of Khadi Village Industry Commission. It was introduced on 31st March 2008 by merging two different schemes, which was earlier known as Prime Minister's Rozgar Yojana, Pradhan Mantri Rozgar Yojana, PMRY, and Rural Employment Generation Program, REGP, Rural Employment Generation Program. ये दो प्रोग्राम्स को 2008 में मर्ज करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया for generation of employment opportunities through establishment of micro enterprises in both rural and urban areas. So the region coverage जो था वो रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्रों में था, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये प्रोग्राम का टारगेट, ये प्रोग्राम The scheme is implemented by KVIC as a nodal agency at the national level, and at state level, the scheme is implemented through state KVIC directorates, state Khadi and Village Industries Board, and district industries center, DICs, as well as banks. So this scheme was coordinating agencies were state level KVIC directorate, state level Khadi Village Industries Board, and डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अलॉन्ग विद बैंक्स. तो ये चार ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिल करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराते हैं स्टेट लेवल पर. द गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर द स्कीम इज रूटेड बाय केवीआईसी थ्रू द आइडेंटिफाइड बैंक फॉर इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिशियरीज एंटरप्रेन्योर्स इन देयर बैंक अकाउंट्स. फंड का ट्रांसफर केवीआईसी के थ्रू जो भी आइडेंटिफाइड बैंक होंगे उन बैंक में एंटरप्रेन्योर्स के अकाउंट के थ्रू फंड रूट करेगा, फंड ट्रांसफर होगा. सो गवर्नमेंट या केवीआईसी से जो भी बैंक्स का टाई अप है या जो भी बैंक्स
के साथ स्कीम में लगे होंगे, उन बैंक के थ्रू फंड ट्रांसफर। नेचर ऑफ असिस्टेंस, इस स्कीम में कैसे असिस्टेंस दी जाती है? द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट unit admissible under manufacturing sector is rupees 25 lakh and under business service sector is rupees 10 lakh. So basically जो माइक्रो एंटरप्राइजेस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो बजट इनिशियली थे, आप देखेंगे यहाँ पे जो फंड का अमाउंट था वो अमाउंट वही रखा गया है। Who can apply? Any individual above 18 years of age, at least 8th standard pass for projects costing rupees 10 lakh in the manufacturing sector and rupees 5 lakh in business service sector. Only new projects are considered for the sanction under PMEGP. Self-help groups, Swayam Sahayata Samuh, including those belonging to the BPL, provided that they have not availed benefits under any other scheme. जो लोग किसी और स्कीम में बेनिफिट ले चुके हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, वो इस योजना की पात्रता में नहीं शामिल होंगे। इसलिए वो स्वयं सहायता समूह जो कभी पहले और किसी तरह का बेनिफिट किसी एंटरप्राइज एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं लिए हैं, वो इस स्कीम में अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का या प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज या चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं उनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है। Existing units under PMRY, REGP or any other scheme of Government of India or state government, and the units that have already availed government subsidy under any other scheme of Government of India or state government are not eligible. तो जो यूनिट्स पहले किसी स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट ले चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट से या किसी और गवर्नमेंट की किसी और स्कीम के अंतर्गत, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव of PMEGP is generation of employment opportunities in rural and urban areas by setting up new ventures or micro enterprises to bring together widely dispersed traditional artisans, rural and urban unemployed youths, and to provide continuous and sustainable employment to a large segment of traditional and prospective artisans to prevent migration of rural artisans to urban areas. तो एक तरफ तो न्यू वेंचर्स सेटअप करने के लिए बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइजेस, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरियाज हो। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए ताकि वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके, to provide continuous and sustainable employment to a large segment of traditional and prospective artisans to prevent, और तीसरा जो है माइग्रेशन को रोकने के लिए रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन है वो इस स्कीम से रुक सके। बेनिफिट्स, द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स यूनिट एडमिसिबल अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रुपीज, ये पहले भी बताया जा चुका है, 25 लाख और 10 लाख का है। Per capita investment should not exceed 1 lakh in plain areas and 1.5 lakhs in hilly areas. Own contribution 5% to 10% of project cost. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste, scheduled tribe, women, margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. तो कैटेगरी वाइज भी बेनिफिट गवर्नमेंट अलग से बेनिफिट भी दे रही है ताकि प्रमोशन मिले ऐसे लोगों को जो शेड्यूल कास्ट हैं या महिला उद्यमी हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ताकि उन लोगों में भी निवेश की भावना डेवलप हो। एक टेबलर फॉर्म में उसी को प्रेजेंट किया गया है यहाँ। कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर पीएमईजीपी एरिया वाइज, जनरल कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरीज में बेनिफिशियरीज ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यहाँ 10% की जरूरत है, यहाँ केवल 5% की। रूरल और अर्बन एरियाज में 15%, 25% का बेनिफिट जनरल कैटेगरी को, 25% to 35% का बेनिफिट अदर स्पेशल कैटेगरीज के लोगों के लिए।
देन 2008 से 2011-12 के बीच में 11th 5 ईयर प्लान का कुछ डेटा यहाँ पे आपको शो किया है मैंने। 11th प्लान एंड 12th प्लान दोनों प्लान के बीच का डेटा है। 11th प्लान में आप देखेंगे 11th प्लान और 12th प्लान में, तो 11th प्लान के कंपेरिजन में 12th प्लान में आप देखें अमाउंट बढ़ा हुआ है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो रुपीस करोड़ में फिगर्स दिया है 11th और 12th प्लान का। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखिए यहाँ करीब 30 लाख से ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेड आप देखें करीब 3,58,000 के करीब प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, असिस्ट किया गया। सब्सिडी में भी आप देखें सब्सिडी रिलीज्ड और यूटिलाइज, तो यूटिलाइज थोड़ा कम है बट लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 95% के लगभग जो फंड ग्रांट जो सब्सिडी रिलीज किया गया था और उसका यूटिलाइजेशन भी किया गया। तो ओवरऑल डेटा जो बता रहा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी नए उद्यमों, नए लोगों को रोजगार देने में सहायक, नए उद्यम स्टार्ट करने में सहायक रहा है। दूसरी स्कीम है स्कीम फॉर रीजनरेशन ऑफ फंड फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। इसको जब मैं 2006 MSME एक्ट में भी मैंने ये चर्चा की थी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको फिर रीजनरेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग स्कीम शुरू की गई जिसका नाम स्फूर्ति दिया गया। गवर्नमेंट through KVIC and the Quar board has also been implementing a cluster based scheme named Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries स्फूर्ति। क्लस्टर बेस्ड एक जैसे नेचर की जो एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो वर्क हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट। तो क्लस्टर बेस्ड स्कीम जिसका नाम स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये लॉन्च किया क्वार बोर्ड और KVIC दोनों के माध्यम से, अंडर विच खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड क्वाड क्लस्टर्स हैव बीन टेकन अप फॉर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी गई। इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट, जो भी संसाधन, जो भी मशीनरीज चाहिए, जो भी काम करने के लिए यंत्र चाहिए वो प्रोवाइड करना। कॉमन फैसिलिटीज सेंटर लाइक मार्केटिंग फैसिलिटी से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड या फिर फंड से रिलेटेड, तो एक ही स्थान पर उस पर्टिकुलर क्लस्टर में जो भी यूनिट्स हैं उन सबको सपोर्टिंग जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उसके लिए एक फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश करना। बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज, बिजनेस कैसे और बढ़ाया जा सके उससे संबंधित सलाह देने के लिए। देन ट्रेनिंग, अगर कोई नई ट्रेनिंग चाहते हैं या कोई नई ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को प्रोवाइड की जाती है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग फर्दर, अगर पर्टिकुलर यूनिट अपने जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको और डेवलप करना चाहते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो उससे संबंधित सहायता। देन डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट, नए डिजाइन प्लस अगर प्रोडक्ट्स बना है तो उसको उसके लिए मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड artisans into cluster to make them competitive and provide support for their long term sustainability। तो जरूरी नहीं है कि उस एरिया में क्लस्टर बना है पहले से, अगर
ये बोर्ड के वीआईसी और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्वायर बोर्ड के लोग, इनको लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों को मिला करके हम क्लस्टर बना सकते हैं, 25, 50, 100, 200 लोगों को मिला करके अगर क्लस्टर बना सकते हैं तो, और कॉमन फैसिलिटीज जो भी चीजें हैं वो हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, आर्टिजन्स and rural entrepreneurs, to enhance marketability of products of such cluster by providing support for new products design, intervention and improved packaging, and also the improvement of marketing infrastructure. तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कट है, सारे फैसिलिटीज जितने भी हैं वो आर्टिजन जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करना। तो इक्विप ट्रेडिशनल आर्टिजन्स ऑफ द एसोसिएटेड क्लस्टर विद द इम्प्रूव्ड स्किल एंड कैपेबिलिटीज थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर विजिट, to make provision for common facilities and improve tools and equipment for artisans, to strengthen the cluster governance system with the active participation of the stakeholders so that they are able to gauge the emerging challenges and opportunities and respond to them in a coherent manner. तो ओवरऑल अगर हम इस स्कीम को भी इवैल्यूएट करें तो एक ये स्कीम भी जो आर्टिजन्स हैं उन आर्टिजन्स को सपोर्ट करने के लिए है, उन आर्टिजन्स को उनके उद्यम चलाने में सुविधा, उनको जो भी हार्डन्स है उनको फंड से रिलेटेड, उनको मार्केटिंग से रिलेटेड, उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनको कुछ नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नए तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें इस स्कीम के तहत उनको प्रोवाइड किया जाए। To build up innovative and traditional skills, improve technologies, advanced processes, market intelligence, and new models of public-private partnership, so as to replicate similar gradually generated. There may be some problem. Cluster-based generate traditional industries. 101 clusters, 29 khadi, 47 village industries, and 25 core clusters have been assisted under this scheme during 11th plan. Spurti scheme has been revamped in 12th five-year plan, and it is proposed to develop 800 clusters during 12th plan. 71 clusters with an outlay of 149.44 crore have been taken up for development in the first phase. The scheme would cover 3 types of intervention, namely soft intervention, hard intervention, and thematic intervention. Soft intervention, hard intervention, इसकी बात अभी हम आगे कर रहे हैं। ये तीनों इंटरवेंशन क्या है? द प्रोजेक्ट आउटले फॉर वेरियस क्लस्टर्स एज फॉलोज। हेरिटेज क्लस्टर दिया गया जिसमें 1000 से लेकर 2500 आर्टिजन्स, और इस क्लस्टर में जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वो ₹8 करोड़ रुपीस के लगभग का है हेरिटेज क्लस्टर में। 500 to 1000 आर्टिजन्स का मेजर क्लस्टर नाम दिया गया जिसमें इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपीस तक का, और मिनी क्लस्टर अप टू 5 आर्टिजन्स 1.5 करोड़। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जम्मू कश्मीर एंड हिल स्टेट्स, देयर विल बी 50% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आर्टिजन्स पर क्लस्टर। सॉफ्ट इंटरवेंशन किसको कहा जाता है? मैक्सिमम ऑफ ₹25 lakhs, 100% scheme funding. Hard intervention as per project requirement, 75% scheme funding. Cost of technical agencies ₹8%. Of soft and hard intervention 100% scheme funding. Cost of implementing agency, cluster executive, maximum ₹20 lakh, 100% scheme funding. The above eligible agency organization has to submit the proposal to the state offices KVIC, and the same is to be scrutinized at state
level and zonal level before submitting the to scheme steering committee for approval. तो स्फूर्ति स्कीम में बेसिकली क्या है कि डिफरेंट क्लस्टर फॉर्मुलेट किया जाना है और उस क्लस्टर में नंबर ऑफ आर्टिजन्स के बेसिस पे क्लस्टर की कैटेगरी डिसाइड की गई, हेरिटेज, मेजर एंड ये आर्टिजन्स क्या है? आर्टिजन्स क्या है? कोई बता सकता है आर्टिजन्स किसको कहते हैं? शिल्पकार, जो कारीगर सर, कारीगर। कारीगर किस तरह के कारीगर? कारपेंटर हो गया, या फिर कोई मूर्ति बनाता हो, या फिर कोई मिट्टी के वर्क हो। यस, जो कलात्मक कार्य करते हैं, आर्टिजनल वर्क जैसे साड़ी बिनाई का काम, हैंडलूम में भी जो पर्टिकुलर हाथ से बनाने वाला काम है ना, तो ऐसे वर्कर जो कलात्मक कार्य करते हैं, जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत पॉपुलर है, तो जो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं वो आर्टिजन्स कलाकार है ना। और एक तरीके से उनको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि जो मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड उनका नहीं है, कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी लेकर के काम करते हैं, किसी रॉ मटेरियल कहीं से लिया, बनाया, फिर सप्लाई किया। तो जब ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, ऐसे 10-20 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को एक साथ ला करके और फिर उनको एक क्लस्टर फॉर्मुलेट कर लिया और उस क्लस्टर में उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो ये स्फूर्ति स्कीम है इसके तहत उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको रॉ मटेरियल के टर्म में, उनको ट्रेनिंग के टर्म में, उनको प्रोडक्ट्स जो तैयार हो रहे हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए, उनको सेल करवाने में जो हेल्प करना है, ये उससे संबंधित है। तो यहाँ आर्टिजन से मतलब जो कलाकार या जो कार्य कर रहे हैं, जो मजदूर भी हम उनको कह सकते हैं, लेकिन वो एक विशिष्ट तरीके के, विशिष्ट प्रकार के मजदूर हैं। ठीक है? हाँ सर। सर इस सॉफ्ट इंटरवेंशन और हार्ड इंटरवेंशन जब तक क्लियर नहीं, सॉफ्ट इंटरवेंशन और हार्ड इंटरवेंशन में से तात्पर्य यहाँ पे सीधे है फंड के अमाउंट्स। जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन ये कहा जा रहा है कि जो इनिशियल स्टेज में जो प्रोजेक्ट मैक्सिमम ऑफ ₹20 लाख, 25 लाख। हार्ड इंटरवेंशन जो प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना हो चुका है और जिसमें प्रोजेक्ट में जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल मींस 100% ना दे करके उसका कुछ पर्टिकुलर कम परसेंटेज दिया है, जो 5 साल या 10 साल पुराना, 5 साल पुराना जो स्टार्टअप है। इंटरवेंशन से मतलब यहाँ पे हम सीधे ये देख रहे हैं कि जो स्कीम शुरू करने से तात्पर्य है, तो जो इनिशियल स्टेज में है, जिसमें काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, सॉफ्ट इंटरवेंशन। देन हार्ड इंटरवेंशन जो कुछ दिन पुराना हो चुका है, जो 5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल परफॉर्म कर रहा है और काफी कुछ सिस्टम उनका एस्टैब्लिश हो चुका है, हार्ड इंटरवेंशन उसको कहा जा रहा है। तो स्फूर्ति स्कीम में और पीएमजीपी में दोनों में डिफरेंस ये है कि पीएमजीपी नए प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है और कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। स्फूर्ति प्रोग्राम क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कुछ आर्टिजन्स को इकट्ठा करके और फिर फर्दर एक क्लस्टर बना करके गवर्नमेंट की तरफ से फंड लिया जाता है।
तो ये दो डिफरेंट स्कीम जिसको कि एमएसएमई एक्ट 2006 के बाद से केवीआईसी और क्वायर बोर्ड इनके माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट हो सके, ताकि रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल एज वेल एज अर्बन दोनों ही तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। जो ट्रेडिशनल जो आर्ट कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट स्कीम की बात हम करने जा रहे हैं वो है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना जाता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा वर्ड जो है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसका नाम मुद्रा कहा गया, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक के अंतर्गत स्मॉल यूनिट्स को, स्मॉल बिजनेस जो कर रहे हैं, जो जिनका व्यवसाय छोटे स्तर पर है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा भी और भी टेक्निकल सपोर्ट, वो इस स्कीम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना www.mudra.org.in वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस योजना से संबंधित सारी जानकारी इस वेबसाइट से भी आपको प्राप्त हो सकती है। उद्देश्य रीफाइनेंस फॉर लेंडिंग टू माइक्रो बिजनेस एंड यूनिट्स। माइक्रो बिजनेस या माइक्रो यूनिट्स जो है उनको रीफाइनेंस और उनको पैसे लेंड करना, उनको पैसे उधार देना, पैसे देना। 2015 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना की शुरुआत की थी, इस योजना की घोषणा की थी और योजना बनाते समय माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा बैंक की एक्चुअली 2015 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ये एक बैंक बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को जो व्यवसाय कर रहे हैं लोग, उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो पिछले 5 सालों का मुद्रा योजना के अंतर्गत एक ओवरऑल क्यूमुलेटिव जो प्रोग्रेस है वो आपको यहाँ स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। क्यूमुलेटिव आउटरीच टू 24.48 करोड़, 24.48 करोड़ लोगों तक ये स्कीम पहुंची है। एमएसएमई बोरोवर अकाउंट्स विद क्रेडिट सपोर्ट ऑफ 12.30 लाख करोड़, करीब 24.48 करोड़ लोगों तक पहुंचा और 12.30 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट सपोर्ट दिया। Out of which empowering women with 68% loan accounts belonging to women beneficiaries, 68% women beneficiaries, addressing the credit need of weaker section with 51% of loan account belonging to SC, ST, OBC, 68% महिलाएं, 51% जो डिप्राइव्ड क्लास हैं उनके लिए, उनको इस स्कीम के अंतर्गत लोन दिया गया। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, लास्ट 5 ईयर का टारगेट वर्सेस अचीवमेंट आप देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और जिसमें टारगेट 1.22 लाख करोड़ रुपीस का दिया गया था, बट अचीवमेंट जो था, जो लोन का अमाउंट था वो 1.37 लाख करोड़, टारगेट अमाउंट से भी ज्यादा अमाउंट लोन दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में टारगेट और अचीवमेंट दोनों इक्वल रहा। 17-18 में अगेन अचीवमेंट टारगेट से ज्यादा था और आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काफी ज्यादा रहा टारगेट और अचीवमेंट का, लगभग 0.21
लाख करोड़ रुपीस का डिफरेंस टारगेट और अचीवमेंट में था। तो 18-19 काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी अचीवमेंट टारगेट से ज़्यादा था। एंड ओवरऑल जो अमाउंट मुद्रा योजना के अंतर्गत दिया गया वो भी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में काफ़ी ज़्यादा रहा पुराने जो भी स्कीम्स थी उनके पुराने पिछले वर्ष की तुलना में। The lending institutions, which include all the public sector banks, private sector banks, regional rural banks, small finance banks, microfinance institutions, non-banking financial companies. Non-banking financial companies वो companies होती हैं जो डायरेक्टली बैंकिंग का काम नहीं करती हैं, बैंक को उनको लाइसेंस RBI या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलता है। वो स्मॉल लेवल पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तर्ज पे ही काम करते हैं। टुगेदर हैव एक्सीडेड द एनुअल टारगेट सेट आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर PMMY एवरी ईयर। तो जितना भी एनुअल टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था उस सबसे ज़्यादा ये सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मुद्रा स्कीम के अंतर्गत लोन डिफरेंट माइक्रो बिजनेसमैन या जो छोटे व्यवसायी हैं उनको दिए। उसके बाद एक डेटा और हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्रेस के पर्पज से भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट आपके सामने लाना चाहते हैं कि 2021 में ये स्कीम बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई और हम सभी जान रहे हैं कि उसके पीछे जो कोविड एक सबसे बड़ा कारण रहा है। नंबर ऑफ PMMY लोन सैंक्शन, ये नंबर भी आप देखिए 19-20 की तुलना में काफ़ी कम है। करीब आप देखिए 20 के लगभग का डिफरेंस आ रहा है, 19 के लगभग का डिफरेंस आ रहा है लोन सैंक्शन 20-21 और 19-20 की तुलना में। और जो अमाउंट सैंक्शन और डिसबर्स अमाउंट, वो अमाउंट भी आप देखें, ये दोनों अमाउंट भी 19-20 के कंपैरिजन में कम है। उसके बाद 18-19 की तुलना में आप देखें 19-20 में अमाउंट सैंक्शन, डिसबर्स और नंबर ऑफ PMMY लोन, ये 2019 और 2020 में 2018 और 2019 से ज़्यादा है। ऐसे ही 15-16, 16-17 और 17-18 आप इन ईयर्स के भी डेटा को देखेंगे तो जो नंबर ऑफ लोन सैंक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमाउंट सैंक्शन और डिसबर्स अमाउंट भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये स्कीम धीरे धीरे परफॉर्मेंस इस स्कीम की बढ़ती जा रही है, कवरेज बढ़ता जा रहा है और काफ़ी बेनिफिट लोगों को दे रहा है ये स्कीम। इस स्कीम में क्या क्या ऑफर किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजी इनेबलर, ये स्कीम टेक्नोलॉजी के लेवल पर लोगों को सपोर्ट करता है। रीफाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स टू कमर्शियल बैंक्स, NBFCs, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स, MFIs। रीफाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स टू, ये जो बैंकिंग एजेंसीज हैं इनकी तरफ से माइक्रो यूनिट्स को रीफाइनेंस। क्रेडिट गारंटी टू मुद्रा लोन, देन डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल सपोर्ट। मुद्रा लोन के क्रेडिट गारंटी टू मुद्रा लोन के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल सपोर्ट। प्रमोशनल सपोर्ट में सेक्टोरल डेवलपमेंट, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट, देन स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है कि फर्दर अगर कुछ यूनिट्स जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो इन पार्ट्स पे इन मुद्दों पर मुद्रा स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट दिया जा सकता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग, ये सारा सपोर्ट प्रोग्राम
मुद्रा योजना की तरफ से अलग से प्रोवाइड किया जाता है। रीफाइनेंसिंग के लिए तीन तरह के क्लासिफिकेशन किया गया, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु यूनिट्स, किशोर यूनिट्स और तरुण यूनिट्स। शिशु यूनिट्स अब जिसमें 50,000 रुपए तक का सपोर्ट, किशोर यूनिट्स जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का सपोर्ट, और तरुण यूनिट 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का सपोर्ट। तो ये 3 हिस्सों में यूनिट्स को बांट करके 50,000 से लेकर के 10 लाख तक मैक्सिमम का सपोर्ट इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत मुद्रा बैंक में 20,000 करोड़ रुपए इनिशियल एक कॉर्पस फंड गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया। ये 20,000 करोड़ रुपए मुद्रा बैंक में रहेगा, परमानेंट रहेगा। क्रेडिट गारंटी कॉर्पस ऑफ ₹3,000 करोड़, और इसके अलावा 3,000 रुपीज तक की क्रेडिट गारंटी फंड इसमें मुद्रा बैंक को दिया गया। कि मुद्रा बैंक में ये इतना इनिशियल फंड गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर रखा है, गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर रखा है, ताकि मुद्रा स्कीम के अंतर्गत जो भी योजना में जो भी फंड देना है या जो भी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मुद्रा कार्ड का भी आप देखिए, एटीएम डेबिट कम एटीएम कार्ड